Let us now begin our panel discussion with Mr. Tripathi. We have four panelists with us: K.M. Vaishnavi, Bishmit Raut, Mrinalini Ganesh, and Yash Bindal. I invite Vaishnavi to start the conversation. Good afternoon, sir. I'm Vaishnavi KM. Thank you for taking the time to talk to us about CBSE's viewpoints. We are wise into many things as a result of your talk. COVID has pushed educational institutions to many things as a result of your talk. COVID has pushed educational institutions to improve the way they impart various curricula to its students, which in turn has nudged the syllabus owners to customize their curriculum to the new realities. For example, physical learning material has changed to online resources. Exchange of notes is done through online platforms like Google Classroom and other apps. We would like to understand from you, sir, how these new methodologies were embraced by CBSE to actively integrate them into teaching without disruptions. Yes, personally, basically, this is a pandemic time and this is a challenge for entire world. And the only way out to reach all students through digital classes, online assessment, and online evaluation. This is the only way out by which we can reach to our students. So my straightforward answer is that uh, this is a golden opportunity for education. This is a golden opportunity. Earlier, a teacher earlier a teacher was teaching approximately 40 students in a class with their limited capabilities. And during COVID time, a teacher can taught more than 1,000 students at a time. Even 24 hours, she or he are available for the students. So this is a good opportunity, and in my view, this will be more important than physical classes. I am taking it that it's a starting time. There may be some problems, there may be some learning gaps, there may be some emotional gaps between teacher and students. It may be that you students are missing your friends or teachers or at school atmosphere. But after few time, after few days, after few months, I am very much hopeful that you all will like it. You will cope up with these things, and this online education, this digital education, will be a revolution for entire education system. I can give an example that the entire development of the world in last 2000 years, you can imagine the whole development in last 2000 years is equal to the development of last 100 years. And in last 25 years, you can rate with last 200 years. So digital revolution is the future of the world. And due to this COVID time, digital education enters at your home, enters each and every area of your domain. So this is an opportunity, and we should take it in a very positive manner. The main challenge is to train your teachers, to upgrade your teachers through this digital mode. And second challenge is how we assess your performance through digital mode. These two challenges we are assessing, and very soon we will issue a circular to all schools that how online classes may be conducted and what will be the main methods for assessment of students. Thank you. Thank you very much, sir, for your answer. Thank you, Vaishnavi. नमस्ते सर, मेरा नाम बिस्मित है। मैं सीबीएसई 11 का एक छात्र हूँ। सीबीएसई के द्वारा किए गए पहल और योजना के बारे में आपकी बातचीत को मैंने सुना है, फिर भी मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हैं। इतने कम समय में आपसे सारे प्रश्न तो नहीं पूछ सकता, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लॉकडाउन के इस संकट में वर्चुअल कक्षा या विद्यालय के माध्यम से इसका समाधान निकाला गया। हमारी शिक्षा की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए यह एक शानदार विचार एवं समाधान था, परंतु इसमें कई चुनौतियां भी थी। जैसे पहला, हम विद्यार्थियों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया। दूसरा, सामाजिक अलगाव की वजह से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी थोड़ा असर पड़ा। और तीसरा, यदि किसी विद्यार्थी के पास संसाधन नहीं है तो वह चाहकर भी कक्षा में अपनी भागीदारी दर्ज नहीं कर सकता।
इन चुनौतियों पर आपके क्या विचार हैं? क्या आप विस्तार में बता सकते हैं? क्या इसका कोई समाधान है? इस नई प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए क्या पाठ्यक्रम में कोई बदलाव लाया जा रहा है? Thank you, Vishnu. You have rightly said about the challenges of online classes. मेरा उत्तर आपके लिए यह है कि बेसिकली ये चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। देखिए, आप अपने दोस्तों को मिस कर रहे होंगे, अपने टीचर्स को मिस कर रहे होंगे, अपने स्कूल एटमॉस्फेयर को मिस कर रहे होंगे, बट ऐसा नहीं कि आप इमोशनली उनसे डिस्कनेक्ट हो गए। जैसे आपके ब्रदर सिस्टर या आपके फादर अगर किसी दूसरे कंट्री में जॉब करने या पढ़ने चले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आप उनसे ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, एक्सेप्ट कि जब वो आपके आसपास रहते हैं। इमोशनल कनेक्ट, डिस्टेंस उसमें बाधा नहीं होती है। इमोशनल कनेक्ट, इवन अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो इमोशनल कनेक्ट और बढ़ता जाता है। तो जो मेरा आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट था कि इमोशनली क्या डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो आई कैन से कि नहीं, बच्चे अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने टीचर से इमोशनली इवन बेटर वे में कनेक्ट हो रहे हैं। घर में तो एटमॉस्फेयर मिल ही रहा है, आप अपने टीचर और दोस्तों के साथ और ज्यादा जब आप मिस करते हैं तो कनेक्शन लेवल और बढ़ता है। तो आई कैन से कि ये ऐसी चीज नहीं है कि आप अनसोशल हो जाएंगे, नो। टू थिंग, सेकंड थिंग, एक टीचर 40 मिनट्स में आपको क्लास में टीच करते थे, और नॉर्मली एक फिजिकल क्लासरूम का इम्पैक्ट होता था आपकी पर्सनालिटी पे। बट अगेन मैं अगर उसको डिफरेंट वे में लूं तो 40 मिनट वो क्लास नॉर्मली चाइल्ड सेंट्रिक नहीं होती थी, वो टीचर सेंट्रिक होती थी। टीचर की अपनी वे ऑफ टीचिंग है और उसकी कंटेंट नॉलेज की अपनी लिमिटेशंस है, ठीक है ना। एंड थर्ड, जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल है, ये डिपेंड करती है कि कितनी अच्छी है या किस तरह की है। तो एक टीचर जब आपको क्लासरूम में टीच करता है तो उसकी अपनी लिमिटेशंस होती थी, और कई बार बच्चों को वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग या वन ऑफ द बेस्ट टीचर नहीं मिलता है। ड्यूरिंग कोविड टाइम जब आपके उसी टीचर को ऑनलाइन क्लासेस प्रिपेयर करनी है तो ज्यादा अवेयर है, ज्यादा कंसर्न है, ज्यादा सीरियस है, ज्यादा अटेंटिव है। तो क्लासरूम में जो थोड़ी चीजें होती है, जब टीचर को पता है कि वो ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप पे लोगों के घर में जा रहा है, उसके प्रिंसिपल भी उसके साथ हैं, पूरे वर्ल्ड उसको देख रहा है, वो चीजें रिकॉर्ड हो रही, तो बेस्ट प्रिपेयर करते हैं, लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं, कंटेंट नॉलेज प्रिपेयर करते हैं, एंड अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं आपको ट्रेंड करने में। तो मुझे लग रहा है कि जो सेकंड चैलेंज था कि ऑनलाइन क्लासेज इफेक्टिव नहीं है, मुझे लगता है बेटर इफेक्टिव है और ज्यादा इफेक्टिवली आपको दी जा रही है। कुछ समय लग सकता है टीचर को ट्रेंड होने में, टीचर को कोप अप करने में, आपकी अंडरस्टैंडिंग। वन थर्ड थिंग, आपका इंटायर असेसमेंट बोर्ड एग्जाम्स में होता है या एनुअल एग्जाम्स में होता है, एंड नॉर्मली ये एक तरह की रोट लर्निंग का असेसमेंट होता है। आप अपनी पूरे चैप्टर को रोट लर्निंग के थ्रू रट लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, एंड ड्यूरिंग एग्जाम टाइम आप 100 या 90% मार्क्स ले लेते हैं। ड्यूरिंग स्कूल आवर्स बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है, इवन आपके पास टाइम नहीं होता। आप टीचर से बात करें तो टीचर का प्रेशर होता है सिलेबस को कंप्लीट करने का, बच्चों से पूछें तो बच्चों के पास ये होता है कि हम प्रैक्टिकल और एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स करें या हम अपने सिलेबस को पूरा करें। तो बिफोर कोविड ज्यादातर स्कूलों में, ज्यादातर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सिलेबस को कंप्लीट करने का बर्डन रहता था, एंड आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा, सारी स्कूलों में, मैं भी जिस स्कूल में रहा हूँ मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो ये एक ऐसा समय था जब सारे लोग अपने उस सिलेबस को कंप्लीट करने में, रोट लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट करने में, बच्चों को 100 में 100 मिल जाए, इस स्ट्रेस में पूरी प्रोसेस लेकर चलते थे। ड्यूरिंग कोविड टाइम में सारी चीजें चेंज हो रही, अब चीजें आपकी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे शिफ्ट हो रही, चीजें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे शिफ्ट हो रही, चीजें ग्रुप एक्टिविटीज में आ रही हैं, चीजें आपका जो लर्निंग आउटकम उसके असेसमेंट का तरीका बदल रहा है। अब आपको सिर्फ 3 आवर में असेस नहीं किया जाएगा, ये कोविड इंटायर असेसमेंट पैटर्न को चेंज करेगा। वेट करिए, इसका सीबीएसई गाइडलाइन लेके आने वाला है, लेकिन ये पूरा असेसमेंट पैटर्न अब चेंज होने वाला है। एंड फॉरेन कंट्रीज में, स्पेशली आप सिंगापुर में, मैं सिंगापुर की बात करूं, अतुल जी का स्कूल वन ऑफ द बेस्ट स्कूल हो, मैंने आपके स्कूल को विजिट किया है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, फिनलैंड में या लंदन में, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज में ये लर्निंग ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है, रोट लर्निंग एक्सपीरियंशियल में शिफ्ट हो चुकी है। तो कोविड ने जब आपको ऑनलाइन सिस्टम पे एंट्री दी और जब आपकी टीचर आपके प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज के साथ अपनी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं और उनको मालूम है कि आपका असेसमेंट ग्रुप में, इंडिविजुअल के रूप में, परफॉर्मेंस ग्रुप में होगा, तो ये पूरा का पूरा पैटर्न ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे शिफ्ट हो रहा है। एंड दैट इज द नीड
बिकॉज द बेस्ट पेडागोजी टीचिंग है वो एक्सपीरियंशियल है, सेल्फ ओरिएंटेड है। आपको टीचर टीच करे, आप खुद पढ़ के टीचर से क्वेश्चन करें, व्हाट विल बी बेटर? टीचर आपको पूरा पढ़ाए और आप रट लें, या आप टीचर की जगह खुद सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग लें और जो क्यूरियोसिटी हो, जो क्वेश्चंस हो, जो प्रॉब्लम्स हो, उसको टीचर सॉल्व कर दे, व्हाट विल बी बेटर? आई विल गो फॉर सेकंड ऑप्शन। एंड ड्यूरिंग कोविड टाइम ये सेकंड ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके घर में पहुंच गया। ये सेकंड चैलेंज है जिसको मैं कहता हूं कि आपके लिए ये एक बेटर। एंड थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपने कहा था कि आपका असेसमेंट, आपके एग्जामिनेशन, आपकी प्रोसेस सीबीएसई क्या करने वाला? तो सीबीएसई ऑलरेडी इस इशू पे गाइडलाइन जारी कर चुका है और हमारे मैक्सिमम स्कूल अपने को डिजिटल एजुकेशन पे शिफ्ट कर रहे हैं, डिजिटल असेसमेंट पे शिफ्ट कर रहे हैं, लर्निंग गैप को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की बात है या 9th और 11th होम एग्जाम की बात है, हम सिलेबस को थोड़ा सा कम करेंगे, रसलाइज करेंगे, क्योंकि आप घर में हैं और आप वैसे स्टडी नहीं, क्योंकि अचानक ये हुआ है ना, ये ऐसा नहीं कि 10 ईयर में हुआ, अचानक सर्टेन एक दिन ऐसा आता है जब आप घर में बंद हो जाते हैं। हमें ये चीज मालूम है, इसलिए असेसमेंट के लिए हम आपके सिलेबस को थोड़ा सा रसलाइज कर रहे हैं जिससे आपका बर्डन कम हो। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सिलेबस कम करना कहीं से भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर ये कोविड 6 मंथ रहा तो सिलेबस 50% कम हो जाएगा, और अगर 1 ईयर रहा इसका मतलब आपका ईयर 0 हो जाएगा। तो सिलेबस कम करके एग्जाम के बर्डन से हम आपको मुक्त कर सकते हैं, लेकिन आपका लर्निंग गैप बढ़ता चला जाएगा, आपका ईयर जो है वो खराब होगा, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग जो एक स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए उसका गैप बढ़ेगा। तो मेरा सजेशन लास्ट में यह है कि डू नॉट वेट कि सीबीएसई अपने सिलेबस को, करिकुलम को रसलाइज करे, शॉर्ट करे, छोटा करे। स्कूल से मेरी रिक्वेस्ट है, आप बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका सिलेबस है उसको प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी बेस्ड शिफ्ट करिए और लर्निंग लेते रहिए, क्योंकि नंबर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्टीमेटली इन नंबरों के बाद आप कोई ना कोई लाइफ को लीड करेंगे, तो वहां इंपॉर्टेंस वही आएगी जो मैंने प्रेजेंटेशन में कहा, इंपॉर्टेंस आएगी कॉम्पिटेंसी की, आपकी इंपॉर्टेंस आएगी 21st सेंचुरी स्किल्स की, इंपॉर्टेंस आएगी आपकी इंटायर पर्सनालिटी की, जहां अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होगी, लीडरशिप होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो सोसाइटी को आप बेटर लीड करेंगे। तो विद दीज 3 थिंग्स आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको अपना आंसर मिल गया होगा और आप इस दिशा में ऑलरेडी बढ़ भी रहे होंगे। थैंक यू विष्णु। धन्यवाद सर। नमस्ते सर, मेरा नाम मृणालिनी गणेश है। शिक्षा के भविष्य के बारे में आपका विचार सुनकर मेरे मन में भी कुछ विचार उत्पन्न हो रहे हैं जो मैं विनम्रता पूर्वक आपके साथ बांटना चाहूंगी। सीबीएसई के पाठ्यक्रम के तहत हमें पाठ्य पुस्तक की शिक्षा के अतिरिक्त और भी कई सह पाठ्यक्रम गतिविधियां और क्रियाविधियों की शिक्षा मिलती है जो विद्यार्थियों में सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान का विकास करता है। ये सारी गतिविधियां व्यवहारिक और सामूहिक सक्रियता के द्वारा होती है। ये विद्यार्थियों के ग्रेड को भी निर्धारित करती है, परंतु कोविड के कारण हमारी ये गतिविधियां नहीं हो पा रही है। यह हम लोगों को प्रभावित कर रहा है, खासकर अपने मित्रों या सहपाठियों के साथ इन क्रियाविधियों के न करना हमारी सामूहिक सहभागिता एवं आत्मनिर्भरता को कम कर रहा है। सीबीएसई इन चुनौतियों का कैसे समाधान निकाल पाएगा? इन समस्याओं के निदान के लिए क्या सीबीएसई के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है जिससे इस समस्या के बावजूद भी छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? ओके, थैंक यू बेटा। एंड मैं ट्राई करूंगा कोई ना कोई पॉजिटिव सोल्यूशन देने का आपको। मैं फिर रिपीट करूंगा कि ड्यूरिंग कोविड टाइम जो सबसे बड़ा नुकसान बच्चों को हो रहा है वो स्कूल एटमॉस्फेयर का। आपको स्कूल एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, अपने फ्रेंड्स नहीं मिल रहे हैं, अपने टीचर से फेस टू फेस लर्निंग नहीं हो रही। बट 24 आवर में आप 8 आवर स्कूल का पार्ट होते हैं एंड 16 आवर आप अपने घर पर होते हैं, होम एक्टिविटीज। जो स्कूलिंग है, जो टीचिंग लर्निंग है, जो बेसिकली आई कैन से कि जो लर्निंग एक्टिविटी है वो सिर्फ स्कूल से रिलेटेड नहीं है। वो मॉर्निंग आपके घर से स्टार्ट होती है और फिर आपके घर तक एंड होती है, राइट? अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने डिस्कस किया, देखिए ये एक डिबेट है जिसमें आप इस डिबेट को और इस क्वेश्चंस को रोट लर्निंग की तरह ले सकते हैं या आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरह ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा आंसर को ट्विस्ट करूंगा।
अल्टीमेटली हमने फिर कहा कि आपके एजुकेशन का एम क्या है, आपको कॉम्पिटेंट बनाना, राइट, आपकी कॉम्पिटेंसी डेवलप करना, आप में स्किल डेवलप करना। अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, सोशल स्टडीज पढ़ते हैं, उनके थ्रू आप में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आप में लीडरशिप आती है, आप में क्रिएटिविटी आती है, आप में इनोवेशन आता है, आप में सोशल स्किल आती है, आप में बिहेवियर एंड एटीट्यूड आता है, आप सेंसिटिव होते हैं, राइट, आप लिटरेट होते हैं। तो सब्जेक्ट्स की जो बाउंड्री है, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो किसी न किसी स्किल को आपके भीतर डेवलप करने का प्रयास करते हैं। तो आप अपने क्लासरूम में सब्जेक्ट्स मिस कर रहे होंगे, रोट लर्निंग मिस कर रहे होंगे, लेकिन जो स्किल्स सब्जेक्ट्स लेकर के आते हैं, वो स्किल सारी की सारी आप घर में भी करते हैं। सपोज करिए मॉर्निंग आप टाइम पर उठते हैं और अपनी मॉर्निंग एक्टिविटीज करते हैं, आप अपने रूम की हाउस कीपिंग करते हैं, आप अपने 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 बाथरूम को आप वॉश करते हैं, आप अपनी सारी मॉर्निंग एक्टिविटीज करते हैं, अपने कपड़ों को खुद आप धुलते हैं, वॉश करते हैं, किचन में फादर मदर की आप मदद करते हैं, कुकिंग सीखते हैं, राइट, एंड मॉर्निंग टाइम में आप अपने घर वालों से डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, बातचीत करते हैं। ऑल स्किल्स आप घर में भी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं जो आप स्कूल में डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। और अगर आपने घर में डिमॉन्स्ट्रेट किया अच्छे से तो वो एक्सपीरियंशियल है। स्कूल में तो तब भी आपके ऊपर बर्डन है, राइट, आपके मन में जो कुछ आएगा वो स्कूल में आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां एक बंधन है, वो एक डिसिप्लिन है और समटाइम वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है। तो मैं कह रहा हूँ कई बार जो स्कूल हैं वो स्कूल आपको वो चीज नहीं करने देते जो आपके मन में है, लेकिन जो घर है वहां आप रियल एक्सपीरियंस करते हैं, वहां आपके वो पर्सनालिटी जो एक्चुअल वो रिफ्लेक्ट होती है। तो ड्यूरिंग होम जब आप अपने घर में हैं, अगर आपकी वो पर्सनालिटी, वो स्किल, वो कॉम्पिटेंसी इस समय आपने टच कर ली, वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिटेड रहेगी। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि सोशल स्किल आप जितनी स्कूल में सीखते हैं उससे इंपॉर्टेंट घर में है। अगर आप अपने छोटे भाई से, अपनी बहन से, अपने मदर से, अपने फादर से, ग्रैंड पेरेंट्स से, इवन आपके घर में एनिमल्स है, उनसे सेंसिटिव हैं, वेल बिहेव कर रहे हैं, डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आई थिंक ये नेचुरल डेवलपमेंट है एंड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल के डेवलपमेंट से। और जो लर्निंग स्कूल की आप मिस कर रहे हैं, क्लासरूम लर्निंग मिस कर रहे हैं, उसके लिए स्कूल ऑलरेडी आपको ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल क्लासेस, प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो दोनों को ब्लेंडेड अप्रोच लेकर के चलिए, तो ये बेटर अपॉर्चुनिटी है जो मुझे लगता है कि पहले के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी है। और अपने दोस्तों से और अपने टीचर से जो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन जुड़े हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आप जुड़े हुए हैं, तो वर्ल्ड बहुत नजदीक हो गया, वीडियो कॉल्स हैं, वेबिनार्स हैं, सेमिनार्स हैं, आप उनसे जुड़े हुए हैं, आप उनसे कनेक्ट हमेशा हो सकता है, 24 आवर रह सकता है। तो ये ऐसी चीज नहीं है जो आपको कहीं कोई बड़ा गैप लेकर के आएगी। जरूरत बस इस बात की है कि आप लोग मेंटली और फिजिकली अपने को मेंटेन रखें, किसी तरह की डिप्रेशन नहीं हो, किसी तरह का टेंशन नहीं लें, किसी तरह की स्वास्थ्य को लेकर के चैलेंजेस बच्चों की लाइफ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस समय बच्चों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। आप और उसमें सबसे बड़ी भूमिका आपके पेरेंट्स की है और एज ए गाइड आपके टीचर्स की है। अगर पेरेंट्स और टीचर इस समय आपको ज्यादा बेटर ट्रीटमेंट देंगे तो लर्निंग भी अच्छी होगी, एजुकेशन तो आप आज नहीं तो कल प्राप्त कर ही लेंगे। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम यश बिंदल है, मैं कक्षा 10 CBSE का छात्र हूं और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। वर्तमान शोध के आधार पर विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड-19 महामारी 1 से 2 साल तक और खिंच सकती है। इस परिस्थिति में हम जैसे छात्र जो उच्च शिक्षा चुनने के कगार पर हैं और भविष्य के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं, उनके लिए यह हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ऐसी परिस्थिति से बचाव के लिए CBSE क्या कर रही है? क्या भारतीय शिक्षा प्रणाली में मौलिक बदलाव की आवश्यकता है? हम भविष्य में ऐसी परिस्थिति के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहें, उसके लिए आपकी क्या नीति है? क्या परीक्षा प्रणाली अब कम कठोर होगी? थैंक यू। यस, आई एग्री कि जो ये समय है स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे 12th बोर्ड एग्जाम दिए हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि 9th के बच्चे 10th में प्रमोट हो गए हैं, 10th के बच्चे 11th में प्रमोट हो गए, 11th के बच्चे 12th में प्रमोट हो गए। इन बच्चों की चिंता कम है क्योंकि आइदर ये डिजिटल क्लासरूम के रूप में, ई लर्निंग के रूप में घर पे पढ़ रहे हैं, या हम सिलेबस को थोड़ा सा कम करेंगे, रसलाइज करेंगे तो प्रेशर फ्री रहेंगे। तो
इनको कम चैलेंज है, क्योंकि इनको पता है कि आज नहीं तो कल कोविड नॉर्मल हो जाएगा। देखो एक चीज तो ये कि दुनिया में कोई ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन नहीं रही है जिसका कभी एंड तक ना गई हो। बहुत बार महामारियां आई हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो समय समय पर आती रही एंड विद इन टाइम आफ्टर सर्टेन टाइम वो चीजें खत्म हो गई। तो कोविड एक टाइम बीइंग पैंडेमिक है जो आज नहीं तो कल इसको जाना ही है। जब तक है तब तक हम अपने को सेफ, सिक्योर, हेल्दी रखें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लर्निंग अगर थोड़ी सी रुक भी गई तो हम उस गैप को पूरा करने का काम कर सकते हैं, राइट। जैसे आपका कोई सिलेबस थोड़ा सा छूट गया तो नेक्स्ट डे आप ज्यादा समय दे करके उसको पढ़ सकते हैं। वैसे अगर आपका 3 महीने का कम हो गया तो 3 महीने थोड़ी ज्यादा मेहनत करके आप कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे गैप पूरा ना हो। लेकिन अगर आप हेल्दी रहेंगे, सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, तभी ये काम आप कर पाएंगे। तो पहली इंपॉर्टेंस ये है। जो आपका मुख्य प्रश्न है कि उन बच्चों के लिए क्या जो अपनी हायर एजुकेशन में जाना चाहते थे, जो फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते थे, हायर इंस्टीट्यूट में, देखो ये हर जगह प्रॉब्लम है और सारी चीजें लॉकडाउन स्थिति में सब स्टॉप हो गया। इवन मैं इंडिया में बैठा हूँ, JEE के एग्जाम अभी पेंडिंग हो रहे हैं, पोस्टपोन हुए हैं, नीट के एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं। तो इंडिया में भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक बार पोस्टपोन किए गए हैं। अभी भी ये चैलेंज बच्चों के लिए है कि ये समय पर होगा कि नहीं होगा। जिन बच्चों को हायर एजुकेशन में जाना था, दिल्ली यूनिवर्सिटी या बाकी कॉलेज में जाना था, वो प्रोसेस पोस्टपोन हो रही है। जो प्रोसेस जून जुलाई में होती थी वो अगस्त सितंबर में होगी। जिन बच्चों को फॉरेन कंट्रीज में जाना था, आपको ही पता है मैक्सिमम फॉरेन कंट्रीज ने अपने उस करिकुलम को, अपने सेशन को सितंबर तक के लिए पोस्टपोन कर दिया है। पैंडेमिक लंबा चलेगा तो और वापस जाएगा। तो ये एक ऐसा चैलेंज है जिसमें पूरे वर्ल्ड में सबको इक्वल ट्रीटमेंट होना है। हमारा अगर बढ़ेगा तो दूसरों का भी बढ़ेगा। तो एक चैलेंज है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस समय क्या करें, जिसका डिस्कशन हम इतने समय से कर रहे हैं कि आपकी परीक्षा आज नहीं तो 3 महीने बाद होगी, आपके कंपटीशन 3 महीने बाद होगी, आज नहीं तो एडमिशन भी 3 महीने बाद हो जाएगा। लेकिन इस समय की कैपेसिटी को, स्किल को, कॉम्पिटेंसी को मिस मत करिए। आप अपनी तैयारी करते रहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा IIT का या नीट का या कोई डिफरेंट यूनिवर्सिटी का कोई टेस्ट देता है तो उसको मालूम है कि उसका एग्जाम आफ्टर 1 ईयर होगा। वो बच्चा 10 दिन पहले नहीं पढ़ाई करता है, वो पूरे साल भर उसकी प्रैक्टिस करता है। तो आप मान के चलिए कि आज नहीं तो कुछ महीनों बाद हम नॉर्मल होंगे, लेकिन हम अपने पेस को मेंटेन रखें। CBSE की जहां तक बात है, हम पहला प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों में तनाव ना हो, जिसके लिए सिलेबस को थोड़ा कम कर दें, सिलेबस थोड़ा रैशनलाइज कर दें, करिकुलम को थोड़ा डिफरेंट कर दें, असेसमेंट प्रोसेस को मॉडिफाई कर दें। जो पूरा का पूरा बोर्ड की लर्निंग पे होता था, एक टेस्ट होता था लास्ट में 3 आवर का, उसको थोड़ा सा इंटरनल असेसमेंट के रूप में ज्यादा वैल्यू हम दे दें। ये सारी प्रोसेस चल रही है। ये लंबा चलेगा तो हम अपने पैटर्न को चेंज करेंगे। तो विद इन 15 डेज, विद इन 20 डेज हम इस स्कीम के साथ आने वाले हैं कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे कंटिन्यू हो, ऑनलाइन असेसमेंट कैसे हो, असेसमेंट का पैटर्न कैसे चेंज हो, उसके लिए तो वेट करिए। लेकिन पूरे विश्व में हायर इंस्टीट्यूशन में चीजें रुकी हुई हैं। अगेन मैं यही कहूंगा, पेशेंस रखें, धैर्य रखें, गैप को पूरा करें। और इसके अलावा कोई बेटर वे आउट हमारे पास और आपके पास किसी के पास नहीं है, सिवाय इसके कि हम आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करें कि अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य मेंटेन करें और व्हाटएवर लर्निंग जो ऑनलाइन मोड में हो सके उसको कंटिन्यू करें। अपनी इनोवेटिव क्रिएटिव एक्टिविटीज को बढ़ाएं, अपनी लीडरशिप को बढ़ाएं, अपने बिहेवियर एटीट्यूड को थोड़ा सा रिफाइंड करें, अपनी हैबिट्स को थोड़ा सा इंप्रूव करें, अपने पैशन को, अपने जुनून को थोड़ा सा पीक पर लेकर के जाएं। एंड जो आपकी स्किल्स, जो रियल स्किल्स हैं, उसको रिव्यू करें, वेदर आपके अंदर हो किस लेवल। देयर आर मेनी टेस्ट, अतुल जी, बहुत सारे ऐसे टेस्ट, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं जब बच्चे अपना पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट को करने के बाद आपको मालूम चल जाता है कि आपका गैप कहाँ है, वेदर लीडरशिप गैप है, वेदर फ्लेक्सिबिलिटी का गैप है, वेदर क्रिएटिविटी का गैप है, वेदर करेज का गैप है। देयर आर मेनी थिंग जो आपकी पर्सनालिटी में। तो दिस इज द टाइम जब बच्चे अपनी पर्सनालिटी को असेस करें, रिव्यू करें और जो उसमें गैप है उसको डेवलप करने का प्रयास करें। मैं कहूंगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको अगर हम प्रॉपर वे में लेंगे तो आफ्टर 3, 4, 5 मंथ हम शायद बेटर होकर के निकलेंगे। जी यस। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, मैं आपकी बातों का जरूर ध्यान रखूंगा। Thank you so much, sir, for answering our questions. We would now like to take some questions from the audience members who have been listening to Mr. Tripathi today. There are so many questions coming in, and we've selected a few important ones for Mr. Tripathi.
Our first question states, some states in India are restricting online classes, while others have put restrictions on teacher training as well. Will CBSE push for a national policy to iron out these challenges for all affiliated schools? Yeah, but we are preparing that policy for all over country, and very soon you will get that policy. We are recommending online classes with some limitations because few schools are continuing with 7-8 hour classes. Few schools are conducting online classes for nursery students. That is not needed. So there are many negative things also. Even few students are feeling stress, then eye problems, then other mental problems. So the process, the entire process, entire scheme will come within few days. Just wait for that. But certainly we will encourage online classes, digital classes, online. Definitely, sir. It's so wonderful to see the board in these trying times put so much effort into making sure that the students don't miss out. Our second question comes from Ms. Asmin Davar. She agrees with you when you said that the well-being of students should be our first priority. She wants to know how CBSE will continue the training of teachers for the post-COVID era, because the continuation of online teaching is extremely important in case we come across such a situation in the future. Yeah, basically in person and as a CBSE official, we will encourage these classes even post-COVID also. This is not pre-COVID online classes. This will continue in future also. So we will issue guidelines for this because e-class because with this e-classes we can solve many problems like learning gap of teachers, even shortage of teachers, even good quality teachers, right? Because one good teacher can reach more than 1,000 students. That's, I'm repeating it. So one good teacher can reach more than 1,000 students. There will be no limit of 30 or 40 students. This will be a main contribution of digital education. So for your question, my answer is that we will encourage online classes in future also. We will issue guidelines, and for teachers training, for capacity building of teachers, we have already started online teachers training, and in last 1.5 months, we have trained more than 2 lakhs teachers. And I request Mr. Atulji and all other principals and teachers who are seeing this webinar, that they should also register themselves for online teaching. That is entirely free of cost. And there are many I can say there are many good courses in those teaching training areas. That was all the time we have for today. Thank you, audience members, for participating with such enthusiasm. And thank you, sir, for answering our questions.